Welcome back. Well, today we are discussing the debate sparked by the comments made by Press Council of India Chairman Justice Markandeya Katju. Mr. Trikha, let's get back to where our discussion was, right in the middle of whether we need a self-regulatory body or not. Keeping Mr. Justice Katju's comments aside. नहीं, उसमें देखिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है ये ज्यादा अच्छी रहेगी बनिस्बत इसके रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी जो है वो नहीं चल सकती। आपकी अवधारणा थी शुरू में कि आप एक वेलफेयर स्टेट का आप अवधारणा लेके चले थे। अब वेलफेयर स्टेट की अवधारणा धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई, चीजें खत्म होती गई। अब जो जो रुख बदल रहा है, बाजार का रुख बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं। ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ आपको जाना है। जस्टिस काटजू को या उन लोगों को जो इसके विरुद्ध हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर उनके कमेंट्स भी अगर मीडिया में डिस्कस हुए हैं तो वो भी मीडिया की एक फ्रीडम का और मीडिया में प्रिवेलिंग जो सर्कमस्टांसेज हैं उनमें उनका एक हिस्सा है। और एक हेल्दी डिबेट शुरू हुई है मीडिया में, और मीडिया ने उस पर स्टेटस में उनको ब्लैकआउट नहीं किया गया। But you know, ब्रजमोहन का भी जो ब्रेक के पहले जो कमेंट था काफी इम्पोर्टेंट, आई मीन ही मेड अ वैलिड पॉइंट। उनका ये कहना था कि जब हम ये दौड़ लग रही है कि कौन सा चैनल फर्स्ट है, किसकी टीआरपी, सो वेयर डू यू स्टॉप? इट्स एट द एंड ऑफ द डे हम मार्केटिंग पर रुके, हम किस पर रुके? नहीं, फ्री इकोनॉमी जब है, आपका खुला बाजार है, तो उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा आप लागू नहीं कर पाएंगे। देखिए, बाकी अगर आपके पास लॉज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कवरेज में हम लोग नहीं ला पाते बिकॉज कानून उस बात की इजाजत नहीं देता। बहुत सारी चीजें मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर आ जाती हैं। सो मेनी थिंग्स वी आर ऑलरेडी अप्लाइंग। हम अगर वहां पर नंगे सीन नहीं दिखाते या लाशों को ज्यादा नहीं दिखाते, या जब दिखाई गई लाशें तो उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द सेल्फ रेगुलेशंस आल्सो। Mr. Pandher, at this point, do you think we need to get a little more moralistic and have our ethics with us when we are showing the news as responsible? I think I'll go back to the previous point you were talking about on regulation. What I would suggest is that it has to be an internal regulatory system. Like your channel, it should have its own internal regulatory system. Right. The regulatory system should be completely internal and controlled by the channel. But then it should have also a public, transparency sort of a thing. That people should know about what is the regulatory system this channel is implementing. Tomorrow somebody has a problem that the regulatory system has not worked. Then they might go, they should have an option to go to the Press Council of India. And the Press Council of India then again advises or directs the channel to conduct an inquiry into a complaint which has not been addressed. That can work. But then a non-media regulatory system to regulate the media, that will not work. That I think will not work. That will be counterproductive. And especially if the government sits on, law enforcement sits on your head. No, anybody. Yeah. Because again, then what is the guarantee? What appears from Justice Katju's statements is that he would like to have more teeth. Of course, and by getting electronic media also under the ambit. Yeah, at present, I think it's a toothless body. Everybody knows that. Yeah, they should be in a position to. Their directives should have some weightage. But then it should not be outside like in other when the country is talking about lokpals and we are looking at. But then again, there should be a mechanism to prevent, right? Rather than right. Mr. Pandher has raised some good points where he says self-regulation खुद ही अपना चैनल डिसाइड करे। पर जब मेरा चैनल डिसाइड कर रहा है, especially more so when we look at the Hindi news channels. Now I'll bring to that point also later. But when my channel is deciding to have breaking news as something which is into private people's lives, just Aishwarya Rai's baby, or be it Mahendra Singh Dhoni has just visited his place, that flashes on your thing as breaking. If they consider that, then who regulates that? देखिए, जैसा कि ये बता रहे थे, इसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा कि कुछ टेलीविजन चैनल्स हैं हिंदुस्तान में भी, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल पे अपनी एथिक्स कमेटी बनाई है। अभी टेलीविजन चैनल्स कुछ हैं दिल्ली में जिन्होंने इस तरह कमेटी बनाई है जिसमें 2-3 मेंबर अंदर के होंगे और 2-3 बाहर के होंगे। जो 2 तिहाई मेंबर्स होंगे वो बाहर के होंगे। कुछ अखबारों में भी इस तरह की एथिक्स कमेटी पहले से है। तो ये जो मॉडल है, ये मैं नहीं मानता कि बाहर के लोग आके अखबार के अंदर या टेलीविजन के अंदर उसको रेगुलेट करेंगे। अंदर में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, संपादक हैं, बाकी जो सीनियर स्टाफ्स हैं, एक कमेटी होनी चाहिए। और बाहर में भी चाहे वो जुडिशरी के हों या इंडिपेंडेंट लोग हैं, उसमें शामिल होना चाहिए। और
जो कमिटी फैसला लेती है दैट शुड बी गिवन टू एडिटर्स गिल्ड, और जो पीसीआई है उनको ये मिलना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो संतुष्ट है कि नहीं। ये बात बिल्कुल कंपनी पे या अखबार पे या टेलीविजन चैनल पे पहले छोड़ देना चाहिए कि वो क्या फैसला कर रहे हैं। जो एथिक्स कमिटी अखबार की या टेलीविजन की वो क्या फैसला लेके आ रही है, उसके बाद वो फैसला करें कि वो संतुष्ट है कि नहीं इस फैसले से। तो इससे एक जो अखबारों की या टेलीविजन की जो आजादी की बात की जाती है कि आप सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती है, तो उनको भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, और साथ में एक जो बड़ा कंसेंसस है वो भी बनाने में थोड़ी हमें मदद मिलेगी। मिस्टर त्रिखा, अगर मैं आपसे अब पूछूं, दिस इज अ लिटिल स्लाइटली सेपरेट क्वेश्चन कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। द फर्स्ट थिंग इज, जब हम वर्नाक्युलर पेपर्स देखते हैं या जब हम टेलीविजन देखते हैं हिंदी में ज्यादा, वहां पर ज्यादा हमें सेंसेशन दिखेगा, वहां पर हमें एस्ट्रोलॉजी दिखेगी। क्या एक there's a sheer difference between English and Hindi papers? Difference used to be there. अब slowly that gap is reducing. अब धीरे धीरे उनको पता है कि एक हर हिंदी अखबार का ये होता है, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनका पर्टिकुलरली ये जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अब इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो रीडर है उसको अपनी ओर से जितना भी खींचा जाए लिया जाए। और इसी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी कुछ एक ऐसे हैं जिनकी लेआउट में, जिनकी प्रेजेंटेशन में वो चीजें घर कर रही हैं, वो समझते हैं कि हमें भी जो हिंदी की लीडरशिप जो बहुत ज्यादा सेगमेंट में फैली हुई है उस पर थोड़ा सा कब्जा किया जाए। अब दोनों तरफ से लीडरशिप बड़ी है, लेकिन लीडरशिप कहीं ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक गई है। हिंदी लीडरशिप भी ज्यादा एक्सपैंड हुई है, इंग्लिश लीडरशिप भी ज्यादा एक्सपैंड हुई है। चंडीगढ़ बैठे हैं हम, चंडीगढ़ आज से 15 साल पहले 18 साल पहले के फिगर्स मुझे अब भी याद हैं कि ट्रिब्यून जो लीडिंग यहाँ का न्यूज़पेपर है बहुत लिमिटेड सफियर में, और उसकी टोटल सर्कुलेशन वाज इन फ्यू थाउजेंड्स। अब ये है कि टोटल सर्कुलेशन चंडीगढ़ में उस वक्त 1 लाख तक टारगेट नहीं था। आज चंडीगढ़ में सभी अखबारों के मिला के 2.5 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास सर्कुलेशन है। और ये स्थिति जो है ये हर सिटी में है, एवरीवेयर। आप जहां भी जाइए, एक दैनिक भास्कर है वो करोड़ों में है, क्लेम करता है, और जागरण है उनका अपना क्लेम है, और पंजाब में पहले सिर्फ एक अखबार का था कि कौन सा पेपर क्या कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कंटेंट वाइज बिटवीन द टू पेपर्स, कंटेंट वाइज मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब ये एक होड़ है कंटेंट वाइज भी कि आप मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर ऑफ बेटर कमेंट्स, मोर ऑफ बेटर जो फीचर राइटर्स हैं उनको प्रेजेंट करें, सो दैट द रीडर इज अट्रैक्टेड टू यू। उसकी जितनी भी नीड्स हैं आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये हर अखबार की कोशिश है, और वर्नाक्युलर में भी ये कोशिश काफी देर से आ रही है, और स्लोली टेलीविजन, क्या हमें टेलीविजन में भी यही दिख रहा है कि वी नीड मोर ऑफ कंटेंट, मोर ऑफ न्यूज? आप नोट करेंगे पर्टिकुलरली, एक आप टेलीविजन में नाम यहाँ नहीं लूंगा, उस चैनल ने अगर ज्यादा शुरू की तंत्र विद्या की बातें, कुछ और बातें, तो उनको स्वीकार नहीं किया गया, और अल्टीमेटली उनको भी विथड्रा करना पड़ा। तो लोग रिएक्ट भी करते हैं, और उस रिएक्शन का असर चैनल्स पे भी होता है। चैनल्स भी अपने जो फर्दर जो फैसले हैं डेवलपमेंट की, उसमें उस बेस पर लेते हैं जिस बेस पर रिएक्शंस आते हैं। पर उन्हीं की टीआरपी फिर सबसे ज्यादा भी है। Okay, Mr. Pandher, do you think there's a difference between the English and the vernacular papers? But you know why it's very important to answer this question, because that's where the mindset, that's what they're playing on, that's what they're trying to show. Of course, there is a lot of difference between the English and the language papers. Not only that, I think a lot of English newspapers are still, within that, they continue with that inertia of the pre-independence era. Achha. So they'll continue with that. Okay, the language is superior. Hindi or the Punjabi language inferior chaldi hai, manniya janda. And there are changes you have seen in circulation that has taken place. Okay. The family finds कि जी मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख गया, वो पंजाब विच कहते हुण तू ट्रिब्यून पढ़िया कर, हुण तू पिंड दे विच कहते हुण तू ट्रिब्यून पढ़िया कर। उन्होंने ना दूसरा दसो नहीं जी एक होर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा जी वो किहड़ी भाषा चलदा, कहंदे जी अंग्रेजी ट्रिब्यून ही होया ना जी कहंदे। So that mindset is on, that mindset is on, and nobody has tried to break that mindset कि अंग्रेजी साढ़े नाल हाले भी दिमाग च है अंग्रेजी is a better language. I went recently बाहर जाने का मौका मिला ते उत्थे उन्होंने लोकल ने रोमानिया, you go to Turkey is like us, they feel proud of their language. Yeah.
ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਵਨ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪੇਪਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ colonial mindset so but very quickly, yes, other than the colonial mindset, yes, I'll tell you, as a correspondent of an English newspaper, I'm dependent a lot on the language newspapers for the local content. yes, They have more, the language papers, they will have more people-oriented stories. And the English newspapers will have a more elitist touch. That is why when the politicians come to for elections, they will focus on the language newspapers instead of the English newspaper. Because they know that the people who are reading English newspapers may not actually go and vote. So that is the difference. Yeah. Yes. So that is also the case for the channels. right. That's what I wanted to get at. That is there a different mindset when you're looking at two different kind of languages? Just a language change, and there's a mindset change. Yeah, the English is considered to be the language of the elite. Language is a language, Punjabi hogi, Hindi hogi, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਂਡ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ elite ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ So आम लोग ही they want astrology more, they want भालू news, केकड़ा news, शाम की news आ गई, ये breaking हो गई. Do they want that? Because ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ the governance system ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ justice delivery is pathetic. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ on astrology ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ. Okay, my last words because we're just going to close. Mr. Mohan, आप मुझे लगता है कि जो हिंदी के अखबार है डिजाइनिंग के हिसाब से और लेआउट के हिसाब से अब अंग्रेजी अखबारों से कतई कम नहीं रहे हैं. जो नई नई टेक्निक्स है उसको हम के ऊपर ज्यादा कंटेंट पे मानता हूं कि कंटेंट इज स्टिल द किंग, उसमें कोई शक नहीं है. हिंदी के अखबार भी काफी हद तक बदलाव कर रहे हैं. कंटेंट आप देख लीजिए, अंग्रेजी के फ्रंट पेज पे जितनी खबरें होती हैं और जिस स्तर की खबरें होती हैं, आप यूके की खबरें देखिए, यूएस की खबरें देखिए, तमाम खबरें होती हैं. लेकिन हिंदी का ये आप मान सकते हैं कि जो रीडर्स हैं वो अच्छी तरह से वो फैसला कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है और पंजाबी में क्या पढ़ना है. दे नो इट. और व्हाट अबाउट टेलीविजन देन एट द एंड ऑफ द डे? टेलीविजन सरकार ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रेगुलेट अपने आप को करना पड़ेगा, नहीं तो जो माहौल बन रहा है टेलीविजन के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ में वो कहीं और एक डेड एंड पे जाके ना फंस जाए. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जो सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा मजबूत करें. या कोई और आके रेगुलेट ना करना, कोई और आके. हाँ जी लास्ट वर्ड्स में. नहीं, बिल्कुल ठीक है कि उसमें अच्छे हम कंसेंसस में पहुंचे हैं कि चेंजेस आ रही हैं. और जहां तक ये मीडिया की बात थी, इंग्लिश मीडिया और वर्नैकुलर मीडिया की बात, वर्नैकुलर मीडिया स्लोली इंग्लिश मीडिया की तरफ जा रहा है और इंग्लिश मीडिया स्लोली वर्नैकुलर की तरफ आ रहा है. सो ये डेफिनेटली ये चेंज जो है दिस इज कमिंग अप नाउ. और यही सेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी है. इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी आज टीआरपी में भी कहीं ना कहीं सोच जो है वो बिंदु अड़ गया है कि टीआरपी भी जेन्युइन है या नहीं है. ये स्लोली चीजें जब पिकअप करती हैं तो उसके बाद माइंड सेट में काफी चेंजेस आ जाती हैं. Well, thank you so much for being with us. Well, here's a hard fact, perhaps for the emergency ones. The Indian state has not failed the media. It is the media that has let itself down often. So when the government says that the self-regulation is the best way forward, it is a welcome sign that the media remains free in the country. But if the Press Council chief advocates a regulatory body instead, it should trigger a healthy debate and not a panic reaction. Media does need accountability and some sort of regulation. The debate should start and not end there. Well, that's what we have in this edition of Prime. Till we meet again, good luck and goodbye.